तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पोटेंशियोमीटर से। ये आपका एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, जैसे वोल्ट मीटर और एम मीटर है। वोल्ट मीटर की हेल्प से हम बेटा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, और एम मीटर की हेल्प से हम लोग मेजर करते हैं करंट को, राइट। So similarly, we are going to start with a potentiometer. So let's say potentiometer is a device. So it's a device. It's a device used to find potential difference. To find potential difference or current across any circuit element, across any circuit element, or you can say to find EMF of unknown battery, or you can say to find internal resistance, to find internal resistance of unknown battery, of unknown battery, or unknown resistance. We can do the comparison of cells as well. To compare cells. ठीक है, चलो। तो सबसे पहले तो इसका डायग्राम देखिए। ये पोटेंशियोमीटर का डायग्राम बेटा हम बना रहे हैं। ये एक बैटरी है, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। ये आपका नॉन बैटरी है, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का। ये कनेक्टर्स हैं। ये जो कनेक्टर्स होते हैं बेटा, इस कनेक्टर्स का जो रेजिस्टेंस है उसे हमें इनिशियली इग्नोर करना है। लाइक दिस, ठीक है। एंड let's say this is point A, this is point B, and current I naught passes through this. So let's say this is non-battery. EK represents non-battery. RK represents non-resistance. Non-resistance. ठीक है। So definitely current I naught passes through this. And here we have taken a conducting wire of uniform cross section area of length L. ये जो वायर हमने लिया है बेटा, this wire is of uniform cross section area having a length L. So let's say the conducting wire of uniform cross section area
uniform cross section area of length L, and the resistance of potentiometer can be represented as rho L by A. Okay. Now, if we talk about the current which is passing through this circuit, this is potentiometer, fine. So we can write the potentiometer which is the current which passes through this potentiometer is represented as I naught. So we can say I naught is equals to I naught is equals to EK upon non resistance. This is the wire. So definitely this wire have certain amount of resistance, which is represented by Rp. That means the resistance of the potentiometer Rp, and the internal resistance is Rk. Clear everyone? So I naught is equals to Ek upon resistance of the potentiometer plus resistance of the non-battery. Now, if we talk about the potential difference between the 2 points A and B, so we can say potential difference across point A and B, VAB, is equals to the current which passes through it is I naught, and the resistance of the potentiometer is Rp. So we can say it is I naught into Rp. Now the value of I naught is Ek by resistance of potentiometer plus internal resistance of the battery, non-battery, okay, into Rp. So we can find the current, we can find the potential difference, clear everyone? Now, Yes. यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने लिया है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी, फाइन. तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल रहा है अक्रॉस द ए बी, मतलब जो लेंथ है ए बी लेंथ का वायर है उसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है. अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ निकालना चाहें तो क्या करेंगे? वी नो दैट द लेंथ ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, राइट? So we can say potential difference across AB per unit length, because ये पूरी लेंथ है भाई, L लेंथ का वायर है, L लेंथ का वायर है, L लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए V है, ठीक है? L लेंथ का वायर है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V. तो 1 यूनिट मतलब 1 मीटर का अगर होगा तो कितना हो जाएगा? तो V by L हो जाएगा पर यूनिट लेंथ, राइट? तो वी कैन से potential difference across AB per unit length which is potential difference across AB per unit length is represented by K, and K represents potential gradient. K किसे represent करता है? Potential gradient. Clear everyone? Yes, sir. Right? Now here we can say potential gradient which is represented by K is equals to VAB by L. So what is the value of VAB? So it is non-battery EMF into resistance of potentiometer by RP plus RK. तो हम लिख सकते हैं E into R by R plus small r. ठीक है? ये नॉन बैटरी है, ये पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस है, एंड ये नॉन रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी. बोलो क्लियर है यहाँ तक? डिवाइड बाय एल, तो डिवाइड बाय एल है, इट इज 1 बाय एल, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको. बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, so sir. this is your potential gradient. This is your potential gradient. Okay, now clear everyone? Clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Fine.
अब आगे देखते हैं बेटा इसमें। जो पोटेंशियोमीटर हम ले रहे हैं, नाउ लेट्स फाइंड द पोटेंशियल ऑफ अननोन बैटरी। तो क्या करेंगे, यही कनेक्शंस आपका जो है, ये यहाँ पर एक तो स्केल लगा होगा, एक ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या लगा होगा, स्केल। क्लियर? एंड लेट्स से we have connected one unknown cell or battery with unknown internal resistance. It is connected with a galvanometer and it is connected with jockey. तो ये अननोन है इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पर जो हम बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं ये भी अननोन है। क्लियर? यस और नो? Yes, sir. अब यहाँ पर आप एक चीज समझिए कि ई के रिप्रेजेंट्स कर रहा है किसको, नॉन बैटरी को, राइट? एंड ई यू क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है अननोन बैटरी। क्लियर है यहाँ तक? अरे हाँ है ना, ठीक है। अब आप समझिए, ये इस तरीके से कनेक्टेड है। यहाँ पर ये जो जॉकी जे आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या है, ये जो पोटेंशियोमीटर का वायर दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर हम ऐसे ऐसे रोटेट करवाते हैं, राइट? मतलब कि हम उस पे पॉइंट पुट करते हैं, जॉकी को जो है ऐसे रोटेट करवाते हैं, ठीक है। सो लेट्स से जॉकी जे इज स्लाइडेड ऑन पोटेंशियोमीटर, जॉकी जे इज slided on potentiometer wire till Ig is equals to 0। कब तक, जब तक कि करंट जो गैल्वेनोमीटर में फ्लो हो रहा है वो क्या नहीं हो जाए, जीरो नहीं हो जाए, तब तक हम उसे क्या करेंगे, बिकॉज व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग विद द हेल्प ऑफ जॉकी, वी आर फाइंडिंग द नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। नल डिफ्लेक्शन पॉइंट बेटा वो पॉइंट होता है जहां पर कि करंट जो है वो गैल्वेनोमीटर में पास होना बंद हो जाता है, राइट? So Ig equals to 0, that means we are getting the null deflection point। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? No, sir. No, sir. That means यहाँ से कंक्लूजन हमारे पास में ये है कि there is no current flows across unknown battery। अननोन बैटरी में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। बोलो क्लियर है ये बात? So we can say no current flows through the unknown battery। So we can say no current flows through unknown battery। ठीक है। अब आप यहाँ पे समझिए कि A टू J ये जो हमने लिया है भाई, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ तो करंट फ्लो हो ही रहा है, आई नॉट। तो ऊपर वाला जो सर्किट दिखाई दे रहा है उसमें तो करंट फ्लो होगा, यस और नो? उसमें तो कौन सा आई नॉट करंट ही फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर जो कैलोमीटर में करंट फ्लो होना चाहिए तो वो नहीं हो रहा है। बोलो क्लियर है? तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं A टू Yes, J। sir. हाँ बोलो, कोई डाउट है किसी को? No, sir. ठीक है। अब आप समझिए यहाँ पर, लेट्स से ये आपका पॉइंट ए हो गया और ये आपका पॉइंट जे हो गया। जे पॉइंट इसलिए लिया बिकॉज हमने वहां पर जॉकी कनेक्ट की हुई है, तो ये पॉइंट जे हो गया। तो बेटा ए से जे ये वाला जो पार्ट है, तो यहाँ पर जितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा क्या उतना ही यहाँ पर आ रहा होगा, बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। यस और नो?
Yes or no? तो potential difference across A to J is equals to the potential difference across the unknown battery. जितना A से J पे potential difference होगा उतना ही unknown resistance unknown battery का होगा. बोलो क्लियर है? इसका मतलब कितना भाई, ये जितना आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा उतना ही ये आपको मिल जाएगा. तो आपको अननोन बैटरी का पोटेंशियल मिल जाएगा, वही हमें फाइंड करना था. मिल गया? बोलो क्लियर है Yes. यहाँ तक? बोलो भाई क्लियर है? Yes, sir. अब आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि A to J on potentiometer wire, A to J on potentiometer wire is in parallel with A to J is in parallel with A to J across unknown battery. Clear? A to J on potentiometer wire is in parallel with the A to J across unknown battery. है या नहीं? तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं that potential difference across A to J on wire is equals to potential difference across unknown battery. और अननोन बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो EU से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AJ ऑन द वायर, तो हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A to J ऑन वायर इज, ये कितना मिल रहा है? देखो हम ये कह सकते हैं कि ये कोई x डिस्टेंस होगा जहां पर आपको नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिल रहा है, राइट? तो हमारे पास है बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट है A से B का, मतलब पूरी K/L. यहाँ पर देखो हमने क्या निकाला था? पोटेंशियल ग्रेडियंट. पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पर यूनिट लेंथ. अब हमारे पास में लेंथ कितनी है? तो मल्टीप्लाई बाय x. ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट मिला बेटा, ये कौन सा मिला हमें? पर यूनिट लेंथ का मिला. तो अगर x टाइम्स अगर हमारे पास में लेंथ है तो क्या हम उसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब हमारा जो EMF होगा वो k टाइम्स ऑफ x हो जाएगा. समझ में आ रहा है? Yes, sir. बेटा मैं ये कह रहा हूँ ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है और ये पॉइंट J है. अगर A से B का पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाला था कुछ VAB, पोटेंशियल डिफरेंस A से B का क्या निकाला? VAB. लेकिन पर यूनिट लेंथ अगर निकालना है तो VAB/L लिखूंगा या नहीं? अगर ये L लेंथ का है, A से B L लेंथ है, तो अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ निकालनी तो मैं क्या करूंगा? VAB/L लिखूंगा, राइट? अब यहाँ पर पता चल रहा है हमें कि ये A से J x डिस्टेंस है, मतलब x डिस्टेंस के लिए हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस. तो हम क्या करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस फॉर पॉइंट A to J इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ x. और k कितना है? तो k है VAB/L इंटू x. बोलो आई बात समझ में? समझ में आया बेटा? Yes, sir. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? Potential difference across AJ on the wire we can write k times of x is equal AU, मतलब कि अननोन बैटरी का पोटेंशियल आपके पास आया k टाइम्स ऑफ x. बोलो क्लियर है? यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताओ पहले. No, sir. श्योर? Yes, sir. ग्रेट. अब आगे देखो. तो ये हमने क्या निकाल लिया? अननोन बैटरी का EMF हमने निकाल लिया, ठीक है?
Now let's talk about the comparison of unknown batteries. To compare EMF of unknown batteries. ठीक है, अरे हाँ है ना। देखो, अब जब कंपैरिजन की बात करेंगे तो कंपैरिजन करने के लिए डेफिनेटली हमारे पास दो अननोन बैटरीज होनी चाहिए, तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे। तो जो नया सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, देखिए। देखिए, यहाँ पर हमने लगा दी एक बैटरी, ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया हमने इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर के, नॉन बैटरी ई के। ये हमारा स्केल है बेटा, सॉरी ये कनेक्टर्स, नॉट स्केल। ठीक है, और इसके साथ हमने यहाँ पर कनेक्ट किया है बैटरीज को। फॉर एग्जांपल एक तो ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास में है चौकी J connected with a galvanometer G, something like this, right? And एक और लगा दिया, वन। ये स्विच होगा यहाँ पर, ये आपका फर्स्ट अननोन, ये आपका सेकंड अननोन R1। क्या यहाँ तक क्लियर है? पहले डायग्राम समझ में आ रहा है? डायग्राम क्लियर है सभी को? Yes, sir. कोई डाउट Yes, तो sir. नहीं है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें कंपैरिजन करनी है दो बैटरीज की। लाइक यू कैन सी E1 एंड E2 आर कनेक्टेड व्हिच आर अननोन, R1 एंड R2 आर आल्सो अननोन। तो सबसे पहले हम कनेक्ट करेंगे उसको फर्स्ट स्विच के साथ में। तो जब आपका गैलोमीटर फर्स्ट स्विच के साथ कनेक्टेड होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो बेटा करंट जो होगा हमें, एक मान लीजिए कोई एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है कि x1 डिस्टेंस पे हमें नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है। जस्ट अज्यूम किया हमने, कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि x1 पे मिल रहा है। x1 हमने एक अजम्पशन लिया कि x1 पे हमें मिल रहा है, राइट? समझ में आया? तो हम यहाँ पे कहेंगे कि स्विच S इज कनेक्टेड टू 1 एंड डिफ्लेक्शन हमें कहाँ मिल रहा है? x1 पे मिल रहा है। तो यहाँ पर मिलने वाला पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना आएगा? AJ के अक्रॉस E1 इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ x1 आएगा, बिकॉज ये और ये एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में है। और डिफ्लेक्शन अगर जीरो है तो डेफिनेटली इसमें तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा E1 के थ्रू। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, देखिए, we can say the switch S is connected, switch S is connected to terminal X1, switch S is connected to terminal
ठीक है, and null deflection at x1 is switch S is connected to terminal 1 and null deflection is null deflection is at point x1. So we can say E1 is equals to k times of x1. बोलो क्लियर है? E1 is equals to क्या आ जाएगा? k times of x1 आ जाएगा. बेटा पहला स्विच कनेक्ट किया है ना हमने इसके साथ में, देखो Yes, sir. ये कनेक्टेड है तो x1 मिला, मतलब x1 डिस्टेंस में हमें क्या मिल रहा है? नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है. इसलिए इसके बिकॉज यहाँ तो करंट जीरो है, करंट इसमें तो जा नहीं रहा है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस एजे के अक्रॉस मिल रहा है वो उतना ही यहाँ पर मिलेगा. तो E1 पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वो किसके इक्विवेलेंट होगा? तो यहाँ पर एजे पे मिलने वाला पोटेंशियल डिफरेंस है k टाइम्स ऑफ x1. कितना है? k टाइम्स ऑफ x1. बोलो यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. सर एक बार वापस समझाओ. ठीक है, मैं बेटा ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर हमें नल डिफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड किया. सबसे पहले नल डिफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड करने का मतलब क्या है कि नल डिफ्लेक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर हमें करंट सर्किट में क्या कर देता है? जीरो कर देता है. मतलब यहाँ पर फ्लो होने वाला जो करंट है वो तो जीरो हो जाएगा, जो E1 के थ्रू फ्लो हो रहा है वो क्या हो जाएगा? जीरो. बोलो यहाँ तक क्लियर है? यस सर. तो यहाँ से जाने वाला जो करंट है वो तो बेटा जीरो है. अगर यहाँ पे करंट जीरो है तो यहाँ पर तो हमारे पास में क्या बचा? सिर्फ E1 बचा. नहीं, करंट ही नहीं है तो IR1 तो लिख नहीं सकते, तो हमारे पास में E1 अननोन वो है, बैटरी का EMF है. अब ये किसके अक्रॉस होगा? तो बेटा जितना पोटेंशियल डिफरेंस एजे के अक्रॉस होगा क्या उतना ही हमें इसके अक्रॉस मिलना चाहिए. यही हमारा पैरेलल मेथड है. तो एजे के अक्रॉस मिलने वाला पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो k टाइम्स ऑफ x1 पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा एजे के अक्रॉस. बोलो क्लियर है? अगर बेटा ये x1 की जगह x2 डिस्टेंस पे नल पॉइंट मिलता तो हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस लिखते k टाइम्स ऑफ x2. क्यों? k रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? पोटेंशियल ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा. k किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पोटेंशियल ग्रेडियंट. पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ. समझ में आया? अगर पर यूनिट लेंथ आपका पोटेंशियल डिफरेंस k है तो x1 लेंथ का कितना होगा? तो k टाइम्स ऑफ x1 होगा. बोलो आई बात समझ में? अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. किसी ने डाउट पूछा तो उसका डाउट क्लियर हुआ? यस सर, हो गया. अब मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि अगर हमारे पास में हमने पहले स्विच S1 के साथ कनेक्ट किया, अगर मान लो हम इसे अब कनेक्ट करें स्विच 2 के साथ में, तो इसके अक्रॉस मिलेगा? यस और नो? अरे भाई अब आप एक चीज समझो, अगर मैं ये सेम सर्किट रखूं, देखो समझिए, पहले ये सर्किट है हमारे पास में, ठीक है. पहले हमने इसे कनेक्ट किसके साथ किया है? E1 के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है. अब अगर मान लीजिए हम इसे कनेक्ट करें E2 के साथ, तो E2 के साथ कनेक्ट करने का मतलब क्या है कि ये जो कनेक्शन है इसको ब्रेक करके आपको गैलोरीमीटर को सेकंड के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट. तो डेफिनेटली अब यहाँ पे मिलने वाला जो आपका नल पॉइंट है वो भी अलग होगा. अब हो सकता है आपको नल डिफ्लेक्शन कहाँ मिल रहा हो? फॉर एग्जाम्पल यहाँ से इस इतने डिस्टेंस से मिल रहा हो नल डिफ्लेक्शन पॉइंट x2. बोलो हाँ या ना? Yes, sir. तो अब आपका एक चीज समझो, यहाँ तो करंट फ्लो हो नहीं रहा पहले में, दूसरे में भी नहीं होगा. क्यों नहीं होगा दूसरे में करंट फ्लो? बिकॉज करंट अक्रॉस द गैलोरीमीटर इज जीरो, बिकॉज व्हाट वी हैव फाउंड द null deflection point. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तो अब आप ये समझिए कि यहाँ पर A2J पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AJ किसके इक्विवेलेंट होगा? तो यहाँ पर मिलने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के इक्विवेलेंट होगा, तो वो है E2. और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AJ कितना आएगा? तो k टाइम्स ऑफ x2 इज इक्वल्स टू E2. तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया कि भाई E1 आ रहा है आपका k टाइम्स ऑफ x1 और E2 आ रहा है k टाइम्स ऑफ x2. बोलो क्लियर है? तो हम यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग बोथ
by comparing both, we can say E1 is equals to K times of X1 and E2 is equals to K times of X2. तो क्या कह सकते हैं that E1 by E2 is equals to X1 by X2. बोलो यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Anyone has any doubt here? कोई डाउट हो तो No, पूछ लो बेटा जल्दी से। बोलो यहाँ तक इतनी चीजें क्लियर हो गई? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक बेटा? नहीं, चलो अब आगे देखो। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना कि यहाँ पर हमेशा एक वो तो होगा ही, क्या कहते हैं, स्केल। ये जो है, ये जो x2 हम मेजर कर रहे हैं बेटा, ये हम मेजर तभी कर पाएंगे जब यहाँ पर क्या होगा, स्केल होगा। अगर स्केल नहीं होगा तो आप मेजर नहीं कर पाओगे। तो ये ध्यान रखना कि स्केल तो हमेशा रहेगा ही वहां पर। अगर ये वायर है, जो लेंथ आपने लिया उस लेंथ का वायर है, और सामने क्या है, स्केल। स्केल के ऊपर ऐसे मेंशन होता है कि ये 5 सेंटीमीटर, 10, 15, 20 इस तरीके से। क्लियर है सभी को? राइट। अब आगे देखो। Now let's talk about the internal resistance of unknown battery. क्या फाइंड करना है? internal resistance of unknown battery. ठीक है, तो चलिए देखिए। नेक्स्ट है आपका to find internal resistance, to find internal resistance of unknown battery. ये हमें फाइंड करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, सो सेम वही डायग्राम हमारे पास रहेगा। सबसे पहले तो देखो, मैं यहाँ से ले लेता हूँ ये डायग्राम को। देखिए, अब समझिए। यहाँ पर स्केल है, वो तो आपको आइडिया है ही पहले से कि ये आपका क्या है, ये आपका स्केल है। ठीक है, एंड यहाँ पर हमने अननोन बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है हमको। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पर हमारे पास में कनेक्टेड है अननोन बैटरी, and there is an internal resistance of this, और ये हमने कनेक्ट किया है जो कि J, and there is a galvanometer here. Okay, and we can say here we have connected one non-resistor. यहाँ पर हमने कनेक्ट किया है एक नॉन रेजिस्टर। ठीक है बेटा, ये आपका स्विच 1, ये 1 और ये स्विच 2। दो कनेक्शंस हमारे पास में अवेलेबल हैं, एक 1 और दूसरा 2। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है ये आपका नॉन रेजिस्टेंस है, जिसे मैं R नोट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये आपकी अननोन बैटरी होगी और ये आपका अननोन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी होगा। ओके, तो सबसे पहले तो हम बेटा क्या करेंगे कि स्विच को कनेक्ट करेंगे। ये जो हमारे पास स्विच है, इस स्विच को हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे? तो टर्मिनल उनके साथ कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास में स्विच है
स्विच को हम कनेक्ट करेंगे टर्मिनल 1 के साथ में। किसके साथ कनेक्ट करेंगे? टर्मिनल 1। तो जब आप स्विच को टर्मिनल 1 के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? ऐसा कनेक्शन आ जाएगा, हाँ या ना? तो टर्मिनल 1 के साथ कनेक्ट करने पर क्या होगा बेटा बताओ? जब आप इसे टर्मिनल 1 के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा बताओ जल्दी से। IG0 हाँ IG0 हमें अननोन बेटा, हम वो तो ठीक है, वो तो क्लियर है। आपने इसको कनेक्ट किया तो हमें क्या मिल जाएगा? अननोन बैटरी का ईएमएफ मिल जाएगा, मिल जाएगा। ये जो पहले तो अननोन है ना हमारे लिए, बैटरी जो आपने एयू कनेक्ट किया उसका हमें ईएमएफ थोड़ी ना पता है कितना है। वो तो हम जब स्विच 1 के साथ जब आपने कनेक्ट किया तो स्विच 1 के साथ कनेक्ट करने पे क्या करेंगे हम? सबसे पहले जॉकी का यूज करके हम एक ऐसा पॉइंट फाइंड करेंगे जहां पर कि गैल्वेनोमीटर में से करंट क्या पास होगा? 0। जो गैल्वेनोमीटर है उसमें से जो करंट पास होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यस और नो? यस सर। तो जब आपको यहाँ पर नल डिफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड करना है, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड करने का फायदा क्या हुआ कि हमें ये जो EU है जो कि आपका अननोन बैटरी है उसका ईएमएफ मिल जाएगा। सबसे पहला काम तो ये हो गया। और वो कितना मिलेगा कोई बताएगा? अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुझे ये जो फर्स्ट नल पॉइंट मिला है वो x1 डिस्टेंस में मिला है तो अननोन बैटरी का ईएमएफ कितना आ जाएगा बताइए जल्दी से? K times of x1 कितना आएगा? K टाइम्स ऑफ x1 आ जाएगा। वेरी गुड। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि जब मैंने स्विच को कनेक्ट किया, लेट्स से स्विच S इज कनेक्टेड, लेट्स से स्विच S कनेक्टेड टू टर्मिनल 1 टू टर्मिनल 1, current in the galvanometer is 0, current in the galvanometer is 0, and we can say कब 0 होगा? तो it is at x1 point। 0 कब हो रहा है? at x1 point। yes or no? तो we can say कि अननोन बैटरी जो है EU इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? K टाइम्स ऑफ x1 आ जाएगा। बोलो EU कितना आ जाएगा? K टाइम्स ऑफ x1 आएगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। अब यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ पहले। No, sir. ठीक है, तो ये आपका अननोन ये आ गया KX1। अच्छा, अब एक चीज समझिए, जैसे कि मैं आपको अभी तक 3 बार ये चीज समझा चुका हूँ कि जब यहाँ से जाने वाले करंट IG की वैल्यू 0 हो जाती है तब इसमें से तो करंट फ्लो होता ही होता है। ऐसा नहीं कि इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, इसमें करंट फ्लो होगा I नॉट, राइट? अच्छा, दूसरी चीज समझिए कि अगर अब मान लीजिए यहाँ पर ये जो कनेक्शन लिया है, अगर मैं इस कनेक्शन को कुछ इस तरीके से करूं कि मैंने ये जो स्विच लिया है हमने इसकी जगह हमने यहाँ पर भी कनेक्ट कर दिया, दोनों के साथ कनेक्ट कर दिया। ये R0 जो है वो हमने क्या लिया? नॉन रजिस्टर लिया, ये ध्यान रखना, नॉन रजिस्टर, राइट? तो अब क्या हो जाएगा? अब यहाँ से बेटा जो करंट फ्लो हो रहा होगा इसके अंदर, वो करंट फ्लो हो रहा होगा लेट्स से I डैश। भाई आपने स्विच 2 के साथ कनेक्ट, स्विच सेकंड टर्मिनल को गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया तो अब इसमें कहीं ना कोई करंट तो फ्लो हो रहा होगा, क्लब स्विच 1 एंड 2, ठीक है? तो गैल्वेनोमीटर में से करंट जो फ्लो हो रहा होगा वो 0 हो जाएगा किसी x2 पॉइंट पे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये आपका नॉन रजिस्टर है और ये आपका स्विच है। तो जब आपने स्विच 1 और स्विच 2 को क्लोज कर दिया तो हमें कोई एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसे हम कहेंगे कि दिस इज आवर x2 पॉइंट वेयर द डिफ्लेक्शन इज 0 व्हेन स्विच 1 एंड 2 आर कनेक्टेड। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं क्लब स्विच
S1 sorry club switch S 1 and 2 दोनों जो टर्मिनल्स हैं at with terminals 1 and 2, तो गैलोमीटर में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू कितनी होगी? IG को 0 कब? एट x2 पॉइंट। जैसे पहले हमें x1 पॉइंट में मिला था वैसे अभी कौन से पॉइंट में मिल रहा है? किसी x2 पॉइंट में मिल रहा है। देखो एट एनी x2 पॉइंट वी आर गेटिंग द नल डिफ्लेक्शन। तो यहाँ से जो IG करंट फ्लो हो रहा है गैलोमीटर के थ्रू वो तो 0 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ पर आप समझिए कि अगर हम ये लिखें E अननोन, एक मिनट, करंट IG फ्लो नहीं होगा। ठीक है, देखो अब यहां से इस सर्किट के अंदर IG तो 0 हो गया, लेकिन कोई ना कोई I डैश करंट जरूर फ्लो हो रहा होगा, राइट? तो I डैश करंट जो है वो क्या आ रहा होगा? मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना बेटा। ये ऐसे तो फ्लो हो रहा होगा ना करंट, राइट? तो वो करंट का नाम मैंने दे दिया I डैश। तो I डैश कितना आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस टोटल। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? AU, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है? तो ये नॉन रेजिस्टर है और एक ये RU है, दो कनेक्टेड है। तो नया जो करंट आएगा, लेट्स से I डैश, यहीं लिख देता हूँ, लेट्स से I डैश इज इक्वल्स टू अननोन EU अपॉन R0, that is your non resistance, plus RU, unknown resistance of the unknown internal resistance of the battery। क्या यहाँ तक स्टेप क्लियर है? क्या यहाँ तक स्टेप्स क्लियर है बेटा? Sir, हाँ बोलो। sir ये I dash वाला फिर से समझाएंगे? I डैश वाला ऐसा है बेटा कि यहाँ से हमने ये R0 कनेक्ट किया। अब हमें ये पता है कि इस सर्किट के अंदर, ये जो ऊपर आपको सर्किट दिखाई दे रहा है बेटा, इस सर्किट के अंदर तो R0 फ्लो हो ही रहा है, I0 फ्लो हो रहा है कि नहीं? अब यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, अब देखो ये है तो कनेक्शन ही ऐसे, क्या ये लूप हो रहा है? हो रहा है कि नहीं? Yes, sir. अरे बेटा ये देखो, ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमने एक अननोन ये कनेक्ट किया है, ये RU कनेक्ट किया है, और यहाँ पर आपका नॉन रजिस्टर है R0। मान लो ये सर्किट है सपोज, ठीक है? तो क्या इसके अंदर करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? करंट तो फ्लो होगा इसके अंदर। तो भाई गैलोमीटर से पास नहीं हो रहा है ना, इस सर्किट के अंदर तो फ्लो हो रहा है करंट। Yes, sir. तो ये करंट आपका I डैश लिया हमने, तो करंट I डैश क्या आएगा? तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? EU, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है? तो ये आपका नॉन रेजिस्टर R0 है और ये आपका नॉन रेजिस्टर RU है। बोलो आई बात समझ में? Yes, sir. अब बोलो कोई समस्या है इसमें? No, sir. क्लियर? अब एक चीज आप यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली है, वो ये कि आप इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस आप निकालें पोटेंशियल डिफरेंस AJ के अक्रॉस, ठीक है? उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस आपको इन दो टर्मिनल्स में मिलेगा और उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस आपको इन दो टर्मिनल्स में मिलेगा। बोलो आई बात समझ में? बिकॉज तीनों कैसे कनेक्टेड है बेटा? एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, यस और नो?
क्या ये तीनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है? एक ये वाला, Yes, एक sir. ये वाला और एक ये वाला, ये तीनों एक दूसरे से पैरेलल में है या नहीं है? राइट? जब ये तीनों ही बेटा एक दूसरे पैरेलल में कनेक्टेड है तो हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस थ्री, तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा क्या वो सेम मिलेगा हमें? जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा क्या वो सेम मिलेगा? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. राइट? तो मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर नॉट, ये जो नॉन रजिस्टर हमने लिया है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल रहा है आर नॉट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर नॉट is equals to potential difference across AJ. yes or no? तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि R नॉट के अक्रॉस मिलने वाला पोटेंशियल डिफरेंस के लिए लिख सकते हैं I डैश करंट फ्लो हो रहा है किसमें से? R नॉट में से, राइट? एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AJ, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AJ बेटा कितना आ जाएगा? AJ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? K टाइम्स ऑफ x2 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AJ आएगा K टाइम्स ऑफ x2। क्या ये स्टेप क्लियर है सभी को? भाई K तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पर यूनिट लेंथ है आपका, और x2 डिस्टेंस के लिए चाहिए तो K टाइम्स ऑफ x2 करेंगे। ठीक है? अरे हाँ या ना? Yes, sir. अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं I डैश की जगह, I डैश की जगह क्या लिखेंगे? E U अपॉन R नॉट प्लस R यू लिख सकते हैं। वही I डैश की जगह आप EU अपॉन अननोन बैटरी प्लस नॉन रेजिस्टेंस प्लस अननोन इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ x2 लिख सकते हो। पहले ही बताओ। अरे हाँ या ना? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? सर लास्ट स्लाइड करो ना 1 मिनट। Sir, R not भी आएगा। एक मिनट बेटा रुक जाओ। ठीक है, अब देखो I डैश इंटू आर नॉट था तो I डैश की जगह हमने लिखा EU बाय आर नॉट प्लस आर यू इंटू आर नॉट इज इक्वल स्पेस टाइम्स ऑफ x2, तो ये EU इंटू आर नॉट अपॉन आर नॉट प्लस आर यू इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ x2। अच्छा, अब एक चीज समझिए, ये जो हमारे पास में अननोन बैटरी के नाम पे आ रहा है EU, ये एक्चुअल में हमारे पास तो K टाइम्स ऑफ x1 है, मतलब अब हमारे लिए नॉन हो जाएगा, बिकॉज अगर आपको K पता है x1 पता है तो EU पता चल जाएगा बेटा, राइट? तो EU can be replaced by K times of x1 into R naught by R naught plus RU is equals to K times of x2 लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना? अब यहाँ से ये K1 और ये K1 कैंसिल हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? x1 into R naught is equals to x2 times of R naught plus unknown internal resistance। बोलो यहाँ तक क्लियर है? हाँ या ना? अब हमें फाइंड क्या यस करना है? सर। इसको लिख सकते हैं x1 R naught is equals to x2 R naught plus x2 into RU, मतलब अननोन रेजिस्टेंस का, अरे अननोन बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले तो ये लिख सकते हैं कि x1 R naught minus x2 R naught is equals to x2 into RU। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? x1 माइनस x2 into R naught is equals to x2 into RU। तो यहाँ पे हमें ये निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो हम लिख सकते हैं RU is equals to x1 minus x2 into R naught divided by x2। बोलो लिख सकते हैं?
क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, तो sir. ये हमें क्या मिल गया, इंटरनल रेजिस्टेंस मिल गया ऑफ अननोन बैटरी। क्या मिल गया, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अननोन बैटरी। बोलो हाँ या ना। Yes. Yes, sir. बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ पहले। नो सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। बस ये इतना हमें आज फाइंड करना था। मतलब कि पोटेंशियोमीटर के सारे यूसेज समझ में आ गए। पहला करंट फाइंड करने के लिए, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए, तीसरा अननोन बैटरी अगर आपने कनेक्ट की है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए, चौथा दो अननोन बैटरीज या सेल हैं उनका कंपैरिजन करने के लिए, पांचवा अननोन बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो ये 5 यूजेस हमने देखे हैं आज। किसी को कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर ले पहले। है किसी को कोई डाउट? देखो मैं सारी स्लाइड्स फिर से बता रहा हूँ आपको। किसी भी स्लाइड में अगर आपको कोई भी डाउट है तो बेटा अभी के अभी क्लियर कर लें। इसमें किसी को कोई डाउट है किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। No, sir. No, sir. इसमें? No, sir. इसमें? No, इसमें? no, sir. इसमें? No, sir. चलिए, हो गया यहाँ तक? ओके।